Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice two close test based on SSC exam. So SSC एग्जाम पे बेस्ड हम दो क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे और ये सी शेल पर बेस्ड है. ठीक है, दो क्लोज टेस्ट, एक क्लोज टेस्ट थोड़ा सा बड़ा है और एक थोड़ा छोटा होगा. So let's start. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. दिए गए पैसेज में कुछ ब्लैंक्स हैं, ऑप्शन देखकर आपको फिल करना है. क्लोज टेस्ट करने से पहले एक बार हमेशा पैसेज को रीड करना चाहिए पहले, ताकि हमें पता लग जाएगा कि क्लोज टेस्ट है किस बारे में. और रीड करते करते हमें कुछ ऑप्शन के आंसर मिल जाते हैं. तो एक बार इसको पहले रीड कर लेते हैं या फिर हम आंसर डिस्कस करेंगे. The dash of birds is one of the most fascinating aspects of the natural world. From the soaring flight of eagles to the colorful plumage of parrots, birds have evolved a wide range of dash to survive and thrive in their environments. One of the most remarkable adaptations is the ability of some birds to migrate over vast distances, often crossing oceans and continents to reach their breeding or wintering grounds. However, many species of birds are facing threats to their survival, such as habitat change, climate loss, and dash by humans. In response, conservation efforts have been put in place to protect these birds and their habitats. This might involve creating protected areas, restoring degraded habitats, or reducing the use of pesticides and other harmful chemicals. Another important aspect of bird conservation is dash populations to track changes over time and identify emerging threats. This can be done through citizen science programs or through more intensive efforts led by conservation organizations. Ultimately, protecting birds and their habitats is not only important for the birds themselves but also for the broader ecosystem they are part of and the many benefits these ecosystems provide to humans, such as clean air and water and dash opportunities. ये तो एक क्लोस्टेस किस बारे में, बर्ड्स के बारे में, बर्ड की माइग्रेशन के बारे में, क्या उनको आजकल थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन उसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स किए गए हैं उसके लिए, और बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है, सिर्फ बर्ड्स के लिए नहीं, ह्यूमन के लिए भी, इकोसिस्टम के लिए. तो सब एनवायरनमेंट को बर्ड्स के बारे में डेडिकेटेड है ये पैसेज. ठीक है, तो आप देखिए, अब इसका आंसर बनाने की कोशिश कीजिए. फर्स्ट का आंसर क्या होगा? The dash of birds is one of the most fascinating aspects of the natural world. Assortment, variability, multitude, diversity. क्या हम लास्ट में आंसर्स डिस्कस करेंगे? आप सोचिए क्या आंसर होगा फर्स्ट ब्लैंक का. Second, birds have evolved a wide range of dash, failures, strategies, shortcomings, weakness. Blank third, many species of birds are facing threat to their survival, such as habitat change, climate loss, and dash by humans. Safeguarding, preservation, exploitation, migration. Fourth, another important aspect of bird conservation is dash populations, neglecting, monitoring, overlooking, forgetting. And last, fifth, these ecosystems provide to humans, such as clean air and water and dash opportunities, arduous, recreational, work-related, strenuous. चलिए, होप आपने आंसर सोच लिए होंगे सारे ब्लैंक्स के. अब हम डिस्कस करते हैं पैसेज को. The dash of birds is one of the most fascinating aspects of the natural world. Birds का डैश जो है एक फैसिनेटिंग, मतलब एक आकर्षक, एक अट्रैक्टिव एस्पेक्ट है नेचुरल वर्ल्ड का, प्रकृति का. तो क्या आंसर होगा फर्स्ट ब्लैंक का? असॉर्टमेंट, वेरिएबिलिटी, मल्टीट्यूड, डाइवर्सिटी. असॉर्टमेंट का मतलब होता है कोई कलेक्शन, एक कलेक्शन, एक रेंज को कहते हैं असॉर्टमेंट.
वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी में मतलब होता है चेंजेबिलिटी, कितना चेंज, जिसको कहते हैं परिवर्तनशीलता, चेंजेबिलिटी, चेंज होने की जो एक क्षमता होती है, चेंजेबिलिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया, वैरायटी। तो क्या आंसर होगा इसका, द डैश ऑफ बर्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। अगर आप आगे देखो, फ्रॉम द सोरिंग फ्लाइट ऑफ ईगल्स, जो ईगल्स की जो एक फ्लाइट होती है, मतलब उड़ान, जो उड़ान बढ़ता है, लंबी सी उड़ान जो बढ़ती है ईगल्स, टू द कलरफुल प्लमेज ऑफ पैरट्स, से पैरट्स के कलरफुल प्लमेज, प्लमेज मीन्स फेदर्स, तो पैरट्स के जो कलरफुल फेदर होते हैं, ईगल्स की जो एक उड़ान होती है लंबी सी, बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड अ वाइड रेंज ऑफ डैश। तो अगर आप आगे देखो, यहाँ ईगल्स की बात की हुई है, पैरट्स की बात की हुई है, तो बर्ड्स की एक तरह से वैरायटी की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, कितने अलग अलग तरह के बर्ड्स होते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। प्लमेज मीन्स फेदर्स, असॉर्टमेंट का मतलब होता है कलेक्शन, वैरायटी, वेरिएबिलिटी मीन्स चेंजेबिलिटी, और मल्टीट्यूड आंसर क्यों नहीं हो सकता, मल्टीट्यूड का मतलब होता है वेरी लार्ज नंबर ऑफ, प्लेंटी, लार्ज नंबर ऑफ। तो अगर हम कहें तो मल्टीट्यूड ऑफ बर्ड्स नहीं, मल्टीट्यूड ऑफ बर्ड फैसिनेटिंग एस्पेक्ट थोड़ी हमने आगे बात की है उसकी, कि ये बहुत अट्रैक्टिव है, जैसे पैरट्स के कलरफुल फेदर्स, कलरफुल प्लमेज और एक फ्लाइट ऑफ ईगल्स, तो उनकी अट्रैक्शन की, एक फैसिनेशन की बात की हुई है। तो मल्टीट्यूड आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। द डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स इज द वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। फ्रॉम द सोरिंग फ्लाइट ऑफ ईगल्स, जो उड़ान भरती हैं, जो चील उड़ान भरती है, टू द कलरफुल प्लमेज ऑफ पैरट्स, पैरट्स के कलरफुल सुंदर सुंदर फेदर्स होते हैं, बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड अ वाइड रेंज ऑफ डैश टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन देयर एनवायरमेंट्स। तो बर्ड्स ने एक वाइड रेंज ऑफ डैश की इवॉल्व की हैं, टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन देयर एनवायरमेंट्स, कि वो अपने एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकें, थ्राइव कर सकें, मतलब ग्रो कर सकें अपने एनवायरमेंट में। सो बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड अ वाइड रेंज ऑफ फेलियर्स, स्ट्रैटेजीज, शॉर्टकमिंग्स, वीकनेस। शॉर्टकमिंग का मतलब ये होता है वीकनेस, कोई कमी, तो वीकनेस और शॉर्टकमिंग तो एक जैसा ही हो गया ना। तो ये अगर शॉर्टकमिंग आंसर हो सकता है तो वीकनेस भी हो सकता है। और अगर आप कॉन्टेक्स्ट को देखो, वर्ड्स हैव इवॉल्व्ड अ वाइड रेंज ऑफ डैश, वर्ड्स ने कई तरह के डैश बनाए हैं सर्वाइव और थ्राइव करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए। तो सर्वाइव करने के लिए और थ्राइव करने के लिए क्या वो फेलियर्स बनाएंगे वर्ड्स, ये फेलियर्स तो फिर ना बनाएंगे सर्वाइव और ग्रो करने के लिए। एक तरह का हम थ्राइव की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो फेलियर आंसर नहीं हो सकता। और शॉर्ट कमिंग, वीकनेस भी नहीं, हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए, दोनों नेगेटिव है। तो आंसर हो जाएगा स्ट्रैटेजीज। बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज, बर्ड्स ने कई तरह की स्ट्रैटेजीज बनाई हैं सर्वाइव और थ्राइव करने के लिए एनवायरमेंट में। थ्राइव का मतलब होता है ग्रो, डेवलप। However, many species of birds are facing threats to their survival. लेकिन बर्ड्स के कुछ स्पीशीज, कई जातियां जो हैं, वो थ्रेट्स फेस कर रही हैं अपने सर्वाइवल को। सच एज हैबिटेट चेंज, क्योंकि उनका हैबिटेट चेंज हो जाता है, जो जगह वो रहते हैं वो चेंज हो जाता है। क्लाइमेट लॉस एंड डैश बाय ह्यूमंस। तो क्या आंसर होगा, हाउएवर मैनी स्पीशीज आर फेसिंग थ्रेट्स टू देयर सर्वाइवल, क्योंकि उनका हैबिटेट चेंज होना, क्लाइमेट लॉस होना, ह्यूमंस के द्वारा डैश होना, सेफ गार्डिंग बाय ह्यूमंस, प्रिजर्वेशन बाय ह्यूमंस, एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस, माइग्रेशन बाय ह्यूमंस। यहाँ पे लिखा है बर्ड्स आर फेसिंग थ्रेट्स, मतलब खतरा हो रहा है उन्हें अपने सर्वाइवल पे, ह्यूमन के डैश की वजह से। सेफ गार्ड का मतलब होता है, गार्ड क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ना किसी बिल्डिंग को, किसी ऑफिस को। तो सेफ गार्ड का मतलब भी होता है प्रोटेक्ट करना। तो अगर ह्यूमन उन्हें सेफ गार्ड कर रहे हैं तो उनसे थ्रेट थोड़ी फेस करेंगे। यहाँ का लिखा है ह्यूमन के डैश की वजह से बर्ड्स थ्रेट फेस कर रहे हैं, खतरा फेस कर रहे हैं। तो अगर ह्यूमन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेफ गार्ड कर रहे हैं, तो वो थ्रेट फेस नहीं करेंगे। तो यहाँ नेगेटिव वर्ड होना चाहिए, तो सेफ गार्डिंग आंसर नहीं हो सकता। प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है प्रोटेक्ट करना, ये भी आंसर नहीं हो सकता। माइग्रेशन, फेसिंग थ्रेट्स टू देयर सर्वाइवल, क्लाइमेट लॉस एंड माइग्रेशन बाय ह्यूमंस। ह्यूमन थोड़ी माइग्रेट करते हैं, बर्ड्स माइग्रेट कर रहे हैं, ह्यूमन थोड़ी माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेशन ये भी आंसर नहीं होगा। तब हम पैसेज में बर्ड्स की माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो आंसर यहाँ एक्सप्लॉयटेशन होगा। बर्ड्स अपने सर्वाइवल को थ्रेट फेस कर रहे हैं, क्योंकि अपने हैबिटेट चेंज हो जाने की वजह से, क्लाइमेट लॉस की वजह से, और एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस, मानव द्वारा जो उनका शोषण किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा एक्सप्लॉयटेशन। इन रिस्पॉन्स
Conservation efforts have been put in place to protect these birds and their habitats. लेकिन कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए गए हैं इन बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हैबिटेट्स को बचाने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स भी उठाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें एक्सप्लॉइट ही किया जा रहा है ह्यूमंस के थ्रू, कंजर्वेशन एफर्ट्स भी लिए गए हैं। दिस माइट इन्वॉल्व क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरियाज। अब कैसे कंजर्वेशन एफर्ट लिए गए, उन्हें बचाने के लिए क्या एफर्ट लिए गए, क्या प्रयास किए गए? इन्वॉल्व क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए जहाँ पे बर्ड्स प्रोटेक्टेड रहें। रिस्टोरिंग डिग्रेडेड हैबिटेट्स, जो हैबिटेट उनके डिग्रेड हो चुके थे, खराब हो चुके थे, उनको दोबारा से रिस्टोर करना, ठीक करना। और रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड अनदर हार्मफुल केमिकल्स। तो पेस्टिसाइड्स बाकी हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ भी कम कर दिया गया क्योंकि बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जा सके कंजर्वेशन के लिए। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बर्ड कंजर्वेशन इज डैश पॉपुलेशंस। एक और जो ज़रूरी पहलू है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बर्ड कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, इज डैश पॉपुलेशंस। कि बर्ड्स की पॉपुलेशंस को डैश किया जाए। निगलेक्टिंग, मॉनिटरिंग, ओवरलुकिंग, फॉरगेटिंग। निगलेक्ट का मतलब भी क्या होता है? नज़रअंदाज करना, इग्नोर कर देना। मॉनिटरिंग का मतलब होता है उसी को मॉनिटर करना, देख रेख में रखना, देख रेख करना। ओवरलुकिंग, ओवरलुक का मतलब ये होता है इग्नोर करना। और फॉरगेटिंग तो भूल जाना। तो जब हम बात कर रहे हैं कि बर्ड कंजर्वेशन की, बर्ड को कंजर्वेशन की, प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अब निगलेक्ट तो नहीं कर सकते पॉपुलेशंस को, क्योंकि उन्हें कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, जिससे उसे निगलेक्ट तो नहीं कर सकते, नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, ओवरलुक, इग्नोर नहीं कर सकते, फॉरगेटिंग, जिससे प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में भूल जाएंगे, ये भी नहीं होगा आंसर होगा मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग पॉपुलेशंस, ठीक है, मॉनिटरिंग पॉपुलेशंस टू ट्रैक चेंजेस ओवर टाइम एंड आइडेंटिफाई इमर्जिंग थ्रेट्स। की जो बर्ड्स की पॉपुलेशन है उन्हें मॉनिटर किया जाए, उन्हें अपनी देख रेख में रखा जाए कि क्या उनमें चेंजेस आ रहे हैं, एंड आइडेंटिफाई इमर्जिंग थ्रेट्स, उनको किस तरह के खतरे फेस करने पड़ सकते हैं। दिस कैन बी डन थ्रू सिटीजन साइंस प्रोग्राम्स। अब किसको कैसे कर सकते हैं? थ्रू सिटीजन साइंस प्रोग्राम्स, कुछ उन्होंने सॉल्यूशन बताए हैं, और थ्रू मोर इंटेंसिव एफर्ट्स लेड बाय कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो है वो थोड़े और सीरियस एफर्ट्स करें। अल्टीमेटली प्रोटेक्टिंग बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स is not only important for birds themselves but also for the broader ecosystems they are part of. बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना, उन्हें कंजर्व करना सिर्फ बर्ड्स के लिए ही ज़रूरी नहीं है, इस पूरे इकोसिस्टम के लिए भी ज़रूरी है। एंड द मैनी बेनिफिट्स दिस इकोसिस्टम प्रोवाइड टू ह्यूमन्स। हम ह्यूमन्स को भी जो इस इकोसिस्टम से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे क्लीन एयर, वाटर, ये सब नेचर से ही मिलता है। तो नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कंजर्वेशन एफर्ट्स हमें उठाने चाहिए, ये इस पैसेज में कहा गया। सो सच एज क्लीन एयर एंड वाटर एंड डैश अपॉर्चुनिटीज। और क्या प्रोवाइड करते हैं बेनिफिट्स इकोसिस्टम ह्यूमन को? डैश अपॉर्चुनिटीज, आर्डुअस, रिक्रिएशनल, वर्क रिलेटेड, स्ट्रेनुअस। आर्डुअस, आर्डुअस का मतलब होता है हार्ड, डिफिकल्ट टू डील विद, सब मुश्किल, हार्ड, कठिन, उसको कहते हैं। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज की, एक पॉजिटिव सेंटेंस की बात की जा रहा है ना, कि बेनिफिट्स जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और आर्डुअस का मतलब तो हार्ड, डिफिकल्ट होता है, आर्डुअस, आर्डुअस अपॉर्चुनिटीज थोड़ी होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। रिक्रिएशनल होता है फन, प्लेजर से रिलेटेड, एंटरटेनिंग, इसमें मजा आए, रिलैक्सेशन और एंजॉयमेंट हो। तो वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज या फिर स्ट्रेनुअस, स्ट्रेनुअस का मतलब भी होता है हार्ड, तो ये भी नहीं होगा, या तो वर्क रिलेटेड या रिक्रिएशनल। दिस इकोसिस्टम प्रोवाइड टू ह्यूमन सच एज क्लीन एयर एंड वाटर एंड डैश अपॉर्चुनिटीज। इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं, आंसर यहाँ पे हो जाएगा रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज जो ह्यूमन को प्रोवाइड करते हैं। आर्डुअस का मतलब होता है डिफिकल्ट, रिक्रिएशनल मीन्स enjoyable, entertaining, स्ट्रेनुअस का मतलब होता है डिफिकल्ट, हार्ड। तो स्ट्रेनुअस आंसर नहीं हो सकता, आर्डुअस ये आंसर नहीं हो सकता, आंसर हो जाएगा रिक्रिएशन। ठीक है, सो आई होप आपके आंसर सही हुए, और अगर नहीं भी तो आपको पैसेज समझ में आया हो। थैंक यू। एक और पैसेज हम डिस्कस करते हैं। This book dash writing practices to preschoolers to help them learn to write dash of the English alphabet. Directional draws dash with the letters and numbers guide children in writing. Dash and copying activities encourage children to read and write letters and numbers and dash to count.
तो एक छोटा सा ये क्लोज टेस्ट है, इसके ऊपर बना लेते हैं। क्या आंसर होगा ऑप्शन 1 का? दिस बुक, एक बुक के बारे में बात की जा रही है जो प्री स्कॉलर्स के लिए है। ठीक है, प्री स्कॉलर्स क्या होता है? जो बच्चे स्कूल जाने से पहले प्री नर्सरी में जाते हैं, अभी उनका उतनी एज नहीं हुई कि वो स्कूल जा सके, ऑफिशियली स्कूल शुरू कर सके, तो उनको जो पहले ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है स्कूल में जाने से, तो उसकी बात कर रहे हैं, उसके लिए ये एक बुक है। तो दिस बुक डैश राइटिंग प्रैक्टिसेस टू प्री स्कॉलर्स, प्रोवाइड्स, प्रोवाइड, इज प्रोवाइडिंग, हैज प्रोवाइडेड। क्या आंसर होगा? चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड ऑप्शन, लेटर, लेटर्स, फ्रेजेस, वर्ड्स। थर्ड, गिविंग, गिवन, गिव, गिव। फोर्थ, ट्रेस्ड, being traced, tracing, gave। गेव नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन में ट्रेस ही होगा, ट्रेस। ट्रेस्ड, being traced, tracing, trace। एंड फिफ्थ ऑप्शन, as well as, but, for, yet। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, तो इजी है। दिस बुक डैश राइटिंग प्रैक्टिसेस टू प्री स्कॉलर्स, ये जो बुक है, बुक की बात कर रहे हैं, ये राइटिंग प्रैक्टिसेस डैश करता है प्री स्कॉलर्स को। प्रोवाइड्स, प्रोवाइड, इज प्रोवाइडिंग, हैज प्रोवाइडेड, तो ग्रामेटिकल एरर है, वर्ड तो सेम ही है। तो दिस बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही बुक है, तो आंसर हो जाएगा प्रोवाइड। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। सो दिस बुक प्रोवाइड्स राइटिंग प्रैक्टिसेस टू प्री स्कॉलर्स, तो आंसर प्रोवाइड्स हो जाएगा। टू हेल्प देम लर्न टू राइट डैश ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि उनको हेल्प, अभी वो स्कूल नहीं गए, प्री स्कॉलर्स हैं, तो उनको क्या सिखाया जाएगा? लर्न टू राइट डैश ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, लेटर, लेटर्स, फ्रेजेस, वर्ड्स। देखो फ्रेजेस और वर्ड्स तो, फ्रेजेस तो देखो ग्रुप वर्ड्स हो गया ना, और वर्ड्स तो वर्ड्स बाद में सिखाए जाते हैं, पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट के उनको लेटर्स सिखाए जाएंगे। हम प्री स्कॉलर की बात कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा लेटर्स, अक्षर। टू लर्न देम टू राइट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले उन्हें अक्षर सिखाए जाएंगे उन बच्चों को, ताकि उनको लेटर्स की पहचान हो सके। वर्ड्स और फ्रेजेस तो बाद में सिखाए जाएंगे, तो वर्ड्स फ्रेजेस आंसर नहीं होंगे, और इस लेटर का मतलब तो पत्र होता है, तो आंसर हमारा लेटर्स हो जाएगा। हेल्प देम लर्न टू राइट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, डायरेक्शनल एरोस डैश विद द लेटर्स एंड नंबर्स, गाइड चिल्ड्रन इन राइटिंग। डायरेक्शनल एरोस जो दिए गए हैं विद द लेटर्स एंड नंबर्स, वो गाइड करते हैं बच्चों को राइटिंग के लिए, लिखने के लिए। तो डायरेक्शनल एरोस गिवन, गिविंग, गिव, गिव। ये पूरा पैसेज कौन से टेंस में जा रहा है? एनकरेज, देखो प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। गाइड प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, यहाँ पे आंसर लिखा था हमने प्रोवाइड्स, हेल्प देम लर्न, तो ये सब जो पूरा पैसेज है सिंपल प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। और गिविंग आंसर नहीं हो सकता, गिविंग के लिए पहले इज एम आर आना चाहिए था, तब हम आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, पहले इज एम आर या वाज वर हो, तो यहाँ पे गिविंग तो आंसर होगा नहीं, गिव भी नहीं होगा, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस में जा रहा है हमारा ये पूरा क्लोज टेस्ट, तो गिव आंसर नहीं हो सकता। गिव या गिवन, डायरेक्शनल एरोस गिव विद द लेटर्स एंड नंबर्स, डायरेक्शनल एरोस गिवन विद द लेटर्स एंड नंबर्स, आंसर हो जाएगा। ये पैसिव में जा रहा है, अगर आप देखो ये वाला सेंटेंस, डायरेक्शनल एरोस गिवन विद द लेटर्स एंड नंबर्स, जो डायरेक्शनल एरोस दिए गए हैं लेटर्स और नंबर के साथ, सो आंसर हो जाएगा गिवन, गिवन विद लेटर्स एंड नंबर्स। Guide children in writing, dash and copying activities, encourage children to read and like letters. Dash and copying activities. Traced, being traced, tracing, trace. ट्रेसिंग एंड कॉपिंग एक्टिविटीज, क्योंकि एंड से जोड़ा और यहाँ आई एन जी है, तो यहाँ पहले वर्ड में भी आई एन जी फॉर्म ही लगानी होगी, क्योंकि एंड से कंजंक्शन से हम सिमिलर वर्ड्स को जोड़ते हैं, तो ट्रेसिंग, ठीक है, ट्रेसिंग एंड कॉपिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ट्रेसिंग एंड कॉपिंग एक्टिविटीज
यहाँ पे हमें कॉपिंग एक्टिविटीज और नाउन की तरह यूज किया, ट्रेसिंग एंड कॉपिंग एक्टिविटीज एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया, और एंड के साथ हम सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अगर यहाँ पे आईएनजी है कॉपिंग एक्टिविटीज, जहाँ पे इनका यूज हमने जेरोन की तरह किया गया, एक एडजेक्टिव की तरह किया गया, तो एंड से पहले वाला वर्ड भी जेरोन होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ट्रेसिंग एंड कॉपिंग एक्टिविटीज encourage children to read and type letters and numbers dash to count. Read and write letters and numbers as well as to count, but to count, for to count, yet to count. Read and write letters and numbers को read और write कर सकते हैं, but to count नहीं, यहाँ पे हम contradiction की कोई बात नहीं कर रहे। count yet भी नहीं होगा, आंसर होगा as well as to count, as well as to count. So thank you everyone, hope you like it. Please share the video if you like it. Thank you. Thanks for watching.